Hello, welcome students. Welcome to my accountancy class. Today we are going to take the revision of the dissolution of a partnership firm because we are on this Sunday we are having the test. Dear students, only the most important topics we are going to discuss today. Most important topic from the point of view of general knowledge as well as from the point of view of exam also, so that you may score good marks. Now, see here, the name of the chapter is Dissolution of a Partnership Firm. First, this is the most important question is here for you. If you hide this word, the question remains, what do you mean by dissolution of a partnership? Dissolution of partnership means the change in the relationship between the partners. If there are two partners, if one is entering admission of a partner, it makes a change in the relationship. It is called dissolution of a partnership. Means old relation has changed now into new. At the time of retirement, when there are four partners, one is retiring from the firm, the three remains. They will create their new agreement. They may create their new deed. Means there is new relationship now among the remaining three partners. Or at the time of death, means any type of change in the relationship is called the dissolution of partnership. When we are talking about dissolution of a partnership firm, it means business is going to the end. Business is going to the end. Now, the partners are not going to run the business. They will close all the books of accounts. All the books of accounts. As you already know, you have learned in 11th standard also that all the accounts like revenue, incomes, gains. Second, expenses, losses. These types of all accounts are closed every accounting year, at the end of every accounting year, except two types: liabilities and assets. Only assets and liabilities accounts are having the balances. Their balances are carried forward to the next accounting year only. They remain open only, these accounts, assets and liabilities, which are represented in the balance sheet. तो assets liability assets अकाउंट जो डेबिट बैलेंस होते हैं, liabilities अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस इनके होते हैं, यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं. When we are talking about that, today is the dissolution of partnership firm. These accounts not need to be remain open. These should be closed also. इन्हें भी आज क्लोज किया जाना चाहिए क्योंकि आज पार्टनरशिप फर्म का एंड हो रहा है, कोई भी अकाउंट ओपन नहीं रहेगा. तो देखिए, अच्छे से आपको मालूम है असेट्स अकाउंट डेबिट होते हैं, तो जब आप इनको क्लोज करोगे तो क्रेडिट किया जाएगा. असेट्स अकाउंट के बैलेंस डेबिट होते हैं, जब इनको क्लोज करोगे तो क्रेडिट कर देते हैं. तो एंट्री बनती है टू असेट्स अकाउंट. एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर लिया जाता है यहां, जहां पर असेट्स को रियलाइज किया जाएगा, उनको बेचकर कैश आएगा. तो एक रियलाइज करने के लिए आप टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं, बनता है रियलाइजेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. और ये रियलाइजेबल असेट्स कौन सी हैं? जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, जिनको रियलाइज करके कैश आ सकता है. इसके बाद ये अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं. आप बात करें अब सीधा इसकी. दीज आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, रियलाइजेबल लायबिलिटीज, जिनको रियलाइज करना है. लायबिलिटीज के आपको मालूम है, 11th में आपने अच्छे से पढ़ा था. ऑल लायबिलिटीज अकाउंट्स आर हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस. क्रेडिट बैलेंस होते हैं इनके. जब आप इनको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट, डेबिट. तो आप कहेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट
तो आपने क्या किया, अकाउंट को क्लोज किया और वहां इन अकाउंट्स को क्लोज किया। सारे अकाउंट्स क्लोज होने हैं। अब देखें ध्यान से बेटा, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल में जैसे ही रिजर्व ट्रांसफर होंगे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी। कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जर्नल एंट्री, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज कर दी। और ये जितने भी प्रोविजंस होते हैं, जैसे असेट्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ये भी इसी तरीके से ट्रांसफर कर दी जाएंगे रिलायशन अकाउंट में। मीन्स टू से ऑल अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड नाउ एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट इन दिस साइड। हियर कम हियर, deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditures are those expenditures which are not written off in one accounting year and are shown as assets because they give the benefits for more than one accounting year, means into the future also. तो जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस फायदा दे वो हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और आज जब फॉर्म बंद हो रही है तो इनको भी क्लोज कर दिया जाएगा। एग्जांपल्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और हो सकता है आपको कोई P&L अकाउंट भी हो जिसका डेबिट बैलेंस हो। ये अकाउंट्स क्लोज करेंगे। इससे कैपिटल कम होती है क्योंकि इनको रिलाइज करके कैश नहीं आ सकता। कैपिटल कम होगी तो डेबिट, ये असेट्स अकाउंट क्लोज हुए तो क्रेडिट। एंट्री बनती है कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कैपिटल डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। तो आप देखते हैं बेटा, आपके सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं एक्सेप्ट 3। 1 रिलाइजेशन अकाउंट आपने ओपन किया है। सेकंड जो ओपन है कैश या बैंक अकाउंट। थर्ड जो ओपन है आपका, थर्ड कैपिटल अकाउंट। नाउ ओनली 3 अकाउंट्स आर ओपन, रियलाइजेशन, कैश और कैपिटल। आई रिपीट अगेन, जितनी भी असेट्स रियलाइज हो सकती थी आपने सारी ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में। जितनी भी लायबिलिटीज रियलाइज होनी है, मींस इनका पेमेंट होना है, आपने ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब ये मेन कॉन्सेप्ट था। बाकी जो क्वेश्चन या कोई भी स्टेटमेंट जैसे कहता है आपको वैसे करना है कि जी असेट सेल कर दी। असेट सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, असेट इंक्रीज होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3 अकाउंट्स ओपन हैं, रियलाइजेशन, कैश और कैपिटल। अब कोई भी ट्रीटमेंट केवल इन्हीं के बेस पर करना है, आपको इससे अलग नहीं जाना। असेट बेचोगे तो कैश बढ़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट कोई पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल कम, कैपिटल कम मींस डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरीके से लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करोगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, फिर असेट है कम होगी तो क्रेडिट होगी। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम हो गया। और यदि कोई पार्टनर कहता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे, फर्म बढ़ा देगी क्योंकि वो फर्म की लायबिलिटी बियर करेगा। और इसी तरीके से सारी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होते हुए ये तीनों अकाउंट आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये रिवीजन था, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट था पूरे चैप्टर का, आपको रिवाइज कराया गया था। अब आपके 11th अकाउंट के बेस पर 11th अकाउंटेंसी आपने पढ़ी थी, उसमें चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बेस पर भी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एग्जांपल देते हैं। आपको हमेशा पता है लायबिलिटी साइड और असेट साइड का टोटल इक्वल आता है। वही अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने 11th क्लास में पढ़ा था 5th चैप्टर में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। आज फिर से कैपिटल यदि 2 रुपीज है और लायबिलिटीज आपकी 3 रुपीज है तो इस साइड का टोटल कितना होगा, 2 + 3 5। सेम टोटल यहां आएगा। इट मींस आप कह सकते हैं असेट्स भी 5 हुई क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल है। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, माना ये 2 रुपीज और ये 3 रुपीज, इस तरीके से दोनों साइड का टोटल कितना बनता है, 5 रुपीज। सेम टोटल यहां होता है, असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल ऑलवेज इक्वल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन थी। तो असेट्स कितने की हुई, 5।
ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में यदि दिया है असेट्स आर रियलाइज फॉर ₹8 तो गेन कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो आपने करा ठीक है 2 + 3 = 5 टोटल सेम यहां आएगा और आपका यही से फिर क्या निकल कर आया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया बैलेंसिंग फिगर पर, ठीक है। जो सेम टोटल है वो यहां आएगा, क्वेश्चन में ये दिया था ये आपने कैलकुलेट करा क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपीज में सेल कर दिया आपने असेट्स, तो 5 रुपीज की असेट्स थी, 8 में सेल हुई, गेन कितना हुआ 3 रुपीज का। और ये 3 रुपीज का गेन कहां ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएंगी। और पार्टनर्स में कितना कितना गेन ट्रांसफर करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। नहीं दिया है तो क्या करोगे, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लिया जाता है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं मालूम तो एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ऐसे ही जब रियलाइजेशन अकाउंट में गेन आएगा, द गेन इज आल्सो ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, क्योंकि आप ओल्ड ही होगा, यहां न्यू या गेन कुछ नहीं होगा। ओल्ड मींस द रेशियो एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप firm. My dear students, it was all about the main or important concept of this class. Now I am going to discuss your doubts. Doubts मैं ले रहा हूं अब आपके, मुझसे डाउट्स पूछे हैं बच्चों ने। बच्चे कह रहे हैं सर रियलाइजेशन अकाउंट का यदि पेमेंट हो गया, एक्सपेंसेस पेमेंट करना है। देखो बेटा 3 अकाउंट खुले हुए हैं आपके, कैपिटल, रियलाइजेशन और बैंक। बच्चे का डाउट है कि एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो बेटा एक्सपेंसेस पे कर दिए तो बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक को क्रेडिट करना है, तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। सेकंड क्वेश्चन कि पार्टनर कह रहा है तो एंट्री बनती है फर्म का एक्सपेंस दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कैश तो जा नहीं रहा, पार्टनर का सारे काम कर रहा है, फर्म पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कर देगी, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर कह रहे हैं कि फर्म ने डिसाइड किया है कि किसी पार्टनर को रिमनरेशन दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा फॉर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, तो इस कंडीशन में ये फर्म का एक्सपेंस होगा। सेम एंट्री यू विल पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दी जाएगी। फाइनली आपको ये देखना है बेटा कि जो कैश अकाउंट लास्ट में बनता है या बैंक अकाउंट, दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। रीजन, जितना बैलेंस आपके पास अवेलेबल है या जितना आपने रिसीव करा उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं आप। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा, आपको उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, दे शैल बी पेड, तो एंट्री शैल बी पास्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। फाइनली जब आप बैंक का टोटल करेंगे कैश का, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना कैश अवेलेबल है रिसीव हुआ उससे ज्यादा या उससे कम पेमेंट नहीं कर सकते, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आया तो सारा सॉल्यूशन सही है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे का आया है कि सर कोई असेट्स और लायबिलिटी आपस में एडजस्ट हो जाती है, क्या ट्रीटमेंट है। लिसन माय डियर स्टूडेंट्स केयरफुली, फर्म में 20,000 के क्रेडिटर्स हैं एंड दे आर सेइंग दैट दे आर रेडी टू टेक ओवर द असेट्स of ₹15,000 in the full and final settlement। 20,000 के क्रेडिटर्स, 15,000 के असेट्स फुल सेटलमेंट में ले रहे हैं। आई नो दैट देयर इज अ गेन ऑफ 5,000 रुपीज, क्योंकि फिर 20,000 की लायबिलिटी, असेट्स ले ली 15 की, 5,000 का गेन है। बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव द एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई लायबिलिटी और असेट आपस में एडजस्ट होती हैं तो आपको कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका नहीं करना है, क्योंकि नेट इफेक्ट उसका 5,000 गेन में ही निकल कर आता है।
उसे आप यहां देखें, छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट है, यदि आपका रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 आप यहां लायबिलिटी लिखते हैं और यहां आप लिखते हैं असेट 15, कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों साइड का 5 रुपीज या 5,000, तो ये अपने आप में ट्रीटमेंट नहीं भी किया किसी लायबिलिटी और असेट्स के आपस में एडजस्ट होने का, तो नेट इफेक्ट गेन निकल कर आता है। ठीक है, तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर एज द टॉपिक वाज सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स डाउट्स एंड द ओरल टेस्ट। ठीक है बेटा, मैंने ओरल टेस्ट भी लेना है मुझे। चलिए, अब आपका एक क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर है नॉमिनल, क्योंकि रियल अकाउंट्स होते हैं आपके असेट्स, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं आपके किसी पर्सन से रिलेटेड, जैसे राम मोहन श्याम, या कंपनी से रिलेटेड। नॉमिनल अकाउंट होते हैं आपके एक्सपेंसेस वगैरह, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स, और these types of temporary accounts which are opened. My dear students, if you are still having any doubt, you can make a call and leave the WhatsApp message. Thanks, have a nice day.